Okay, good evening class. Let us begin. Firstly, last class में हम लोग क्या क्या देखे थे एक बार मैं रिकैप कराना चाहता हूँ. Thank you for waiting. 5-10 minutes we will take every class just to organize and start this like we are doing today. So in the last class, which was the first class on basic concepts of accounts for class 11 students of CBSE and ISC boards alike, we had learned and mastered a lot of things in class. We will try and recap those things without any effort today. Okay, without any effort हम लोग वो सारे चीज को रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद after recapping we will try and implement them. Okay, sir, please speak in Bengali. I can speak in Bengali. I am a Bengali, but for the sake of the larger audience and understandability, I will only use English and Hindi in my classes like I do in my CA classes. And I don't think it will be an impediment for anyone who is Bengali, because we understand all languages and we can speak all languages. Okay, although some like some people do have problem with Hindi. That's why if you have problems in understanding Hindi, you can ask me twice. Okay, there's the catch. You can ask me twice if some Hindi is incomprehensible. कुछ हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो चीज आप वापस मेरे को पूछिए, मैं दोबारा आपको इंग्लिश में समझा दूंगा. ठीक है, I'll take that effort, but in class while addressing in general I will avoid speaking in Bengali because of the sake of the larger audience, and whoever is seeing the class can connect to the class and can understand the language. So I hope this is okay with you, all of you. Okay, so like I said, I will firstly revise what we had done in the last class. Okay, लास्ट क्लास का रिवीजन बुक छोड़ के बोर्ड छोड़ के एक बार करेंगे, फिर बोर्ड में जाएंगे. ओके, मैं शुरू किया था, मैं लास्ट क्लास शुरू किया था. लास्ट क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन लेके बहुत सारा बात हुआ था, तो पढ़ाई कम हुआ था. एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई जरूरत से ज्यादा हुआ था, बट मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई का proportion was less. Administration was also somewhere discussed in the last class. Today's class will be wholly dedicated to studies. Okay, administration लेके मेरे को यही बोलना है कि our single point of contact is Mr. Shubham Mishra, who's taking care of the entire admin responsibilities. Get in touch with him if you have any issues. And overall, on top of that, even if you have issues and if you want to reach out to me, I've shared my number. You can discuss anything under the sun on Facebook and our classes and coaching with me directly. Okay, you have that liberty. Okay, now let me be very clear about our classes. अपना हफ्ते में 2 दिन हो रहे हैं अभी अकाउंट्स. गोइंग फॉरवर्ड मैं शायद एक्स्ट्रा क्लासेस लूं, तो 2 दिन हो रहे हैं. मंडेज 6:30 and Wednesday 6:30. I guess these two timings are fit for most of you, and that is why we have chosen this time and mapped this time. Okay, and like I said in the last class, once again I'm recapping the book which I had recommended in class was Hanif and Mukherjee for class 11 and 12. सीबीएसई वालों का सीबीएसई, आईएससी वालों का आईएससी, जो भी बोर्ड का अलग अलग बुक है तो अलग अलग बुक. syllabus of CBSE and ISC in class 11 is almost the same, लगभग एक ही है. Okay, now sir, what have you covered in the class, in the last class? basic concepts में आप क्या क्या समझाए थे? मैं समझाया था अकाउंटिंग क्या है. I went for the definition of accounting, and traditional जो definition है उसी का एक simple version हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे. किसी को याद होगा तो आप लोग नरेट रिकैप कर सकते हो मेरे साथ घर में जो लोग बैठे हो. आई होप यू गाइज आर रेफरिंग टू योर कॉपीज. कॉपी में मेरा कॉपी बना के अकाउंट्स का नोट्स जो क्लास 1 में था, आज 17 जून, आज क्लास 2 का बनाना है. वैसे करके सीरियली बनाना है. अच्छा, कॉपी कैसे बनेगा? ये बोर्ड में जैसे बना हुआ है वैसे ही बनेगा. सर बोर्ड में कहाँ दिख नहीं रहा है? दिखेगा, एक मिनट. ये है आपका बोर्ड, ये है आपका बोर्ड. हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास, और क्लास चालू करने के बाद मैं आप लोग को समझाया था बहुत कुछ, और उसके बाद मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके बात किया था. सर ये नहीं था, ये दूसरा कुछ था. हाँ,
मैं अभी निकाल ले रहा हूँ, don't worry. Yeah. Here you go. Okay, we are done from this sheet, and there you go. In the last class, whatever we had done, we have that. If you recall, basic concepts class 1. Okay, and here's the stuff which we have covered. We have seen accounts का definition एक single line में RCS ACR of T. Accounting is RCS ACR of T. इसका मतलब था R for recording, C for classifying, S for what? Summarizing, ACR analyzing, communicating, and reporting of T. T was transaction. So RCS ACR. RCS ACR. Okay, sir. सर उसके बाद T क्या था? What is T? ट्रांजैक्शंस क्या है? दुनिया भर में इतना कुछ इवेंट हो रहे हैं. इवेंट्स, जो भी घटनाएं, जो भी हैपनिंग हो रहे हैं, दैट इज इवेंट. Last class someone asked, sir, what is event? Event is anything happening in and around. But anything happening in and around doesn't impact our business financially, doesn't impact or change or have a bearing on our business financially. So any event which changes the financial position or the financials of a business is a transaction and is worthy of recording in the books of accounts. This is what we had learned. And transactions are, that's why, defined as events which changes the financial position of an entity, which can be expressed in monetary terms or cannot be. Of course, in order to be recorded in terms of money, it has to be expressed in terms of money. यानी कि मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू में जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग ट्रांजैक्शंस मानेंगे भी नहीं और उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे. फीलिंग्स, इमोशंस, कैन दे बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो. हैप्पीनेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, सैडनेस अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा. ठीक है? सो द आइडिया इज वी विल हैव टू record only the transactions which are monetarily expressed. Now sir, और एक इंपॉर्टेंट लाइन आप बोले थे, सारा ट्रांजैक्शंस इवेंट्स है, बट सारा इवेंट्स ट्रांजैक्शंस नहीं है. सो देखो मेरा कर्सर जहां पे है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स. यस सर, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, but all events are not transactions. Okay, great sir, great. Okay, now we will go ahead. We will see what is bookkeeping. I said bookkeeping is a very minor, छोटू part, very minor part, छोटा सा हिस्सा of entire accounting. Accounting में R है, S है, C है, A है, ठीक है, और फिर ACR है, और पहला वाला R जो है वही है bookkeeping. Bookkeeping is nothing but the record making phase of accounting, and bookkeeping and accounting का difference भी क्लास में कर लिए थे. देखो जो भी सीख रहे हो इतना जोर से सीखो कि क्लास में ही आप लोग लर्न कर ले, तो इससे क्या होगा? स्मार्ट स्टडीज. Efficient people do the same thing which non-efficient people do, but efficient people, efficiency is doing the same thing with less time, smartly, and that is what you're going to learn. Okay, now bookkeeping and accounting का difference जो है, उसमें recording transactions only है, but accounting is more than that. Bookkeeping requires less knowledge, less time, less cost. Time अगर कम है तो cost भी कम है, टाइम ज्यादा रहता है तो पैसा ज्यादा लगता है. तो वही चीज है, person doing bookkeeping is known as bookkeeper, person doing accounting is known as accountant. And then I give you homework. सर याद है आपको? मेरे को हर चीज याद रहता है, हर चीज. आपको भी याद हो जाएगा हर चीज, क्लास में ही याद हो जा रहा है इतना कुछ, तो जरूर याद होगा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस. उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं डिस्कस नहीं किया था, बट ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर दिया था. 3 है मेरा बोर्ड में और कॉपी में भी होना चाहिए. ठीक है, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या था सर? 3 ऑब्जेक्टिव्स था फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के एक अकाउंट खोल के अपने देखते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. रिजल्ट, अल्टीमेट नेट रिजल्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, because accounting is the language of business. Okay, and
Then we had seen financial position, यानी कि assets and liabilities का स्थिति क्या है, बिजनेस में कितने का assets है, कितने का liability है. ओके, पोजीशन अच्छा है या खराब है वो तो एसेट्स लायबिलिटीज देख के पता चलेगा. लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो फिर तो खराब हालत है. और लास्टली डिसीजन मेकिंग, आई सेड टू कंटिन्यू बिजनेस और नॉट, to grow or not, all these critical decisions will be taken by the management. मैनेजमेंट यानी कि जो बिजनेस कर रहा है, मालिक पक्ष, और मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को देख. ओके, एंड देन आई सेड today's topics, before today's topic I said there are two methods of doing accounting. okay, accounting करने का दो सिस्टम है, एक को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री, दूसरे को बोलते हैं सिंगल एंट्री. कौन सा यूनिवर्सल है? डबल एंट्री. डबल एंट्री इज एन universal system of recording transactions, whereas single entry is not universal. कारण या reason क्या है? Reason is very similar, very simple. Reason is double entry is scientific. It's totally scientific. It's complete recording of all the transactions, and hence it is popular and universally accepted. Whereas single entry is not universally accepted, and because it is unscientific and incomplete recording. Double entry is very costly, that's why. Okay, because it's scientific method, you have to hire an accountant proper who knows, and it requires more knowledge, and it requires hence more time as a result. ठीक है ना. और सिंगल एंट्री में ये सारे कम लगते हैं, टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट कम लगेगा, अभी बोला. ठीक है, और नॉलेज कम लगेगा तो कॉस्ट कम लगेगा. लेस नॉलेजेबल पर्सन को एम्प्लॉय कर दोगे बुक कीपिंग करने के, सॉरी सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए. और अनपॉपुलर तो है ही, अनसाइंटिफिक चीजें अनपॉपुलर होते हैं. ओके सर डबल एंट्री का प्रिंसिपल भी आप सिखा दिए थे. हाँ बिल्कुल, डबल एंट्री प्रिंसिपल में मैं क्या बोला था? मैं बोला था डबल एंट्री डुअल एस्पेक्ट. डबल एंट्री प्रिंसिपल बोलता है, क्या बोलता है सर? बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट है. हर एक लेन देन में मेरे को कुछ मिलेगा, मैं कुछ खोऊंगा. कुछ पाना है, कुछ खोना है. किछु पाबो किछु देबो. ठीक है. सो द आइडिया इज हर एक ट्रांजैक्शन में वी रिसीव समथिंग, वी गिव समथिंग. द रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज डेबिट, and the giving aspect of a transaction is known as credit. Debit and credit is hence. यही है सर, एकदम आसान चीज है. डेबिट मतलब the receiving aspect of a transaction, credit मतलब the giving aspect of a transaction. Okay, and what we do, we have seen that what is debit, what is credit भी मैं लिखा दिया, और उसके बाद मेरा नंबर्स शेयर करके मैं हाथ जोड़ के खत्म किया था लास्ट क्लास. अभी हाथ जोड़ के स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास. अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा टॉपिक्स को लिख ले रहा हूँ. सर टॉपिक्स को लिख लेंगे? हाँ बिल्कुल, टॉपिक्स को लिख ले रहा हूँ. आज दूसरा क्लास है अपना. ठीक है, आज दूसरा क्लास है. दूसरा क्लास में अपने क्या क्या करेंगे, मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ और एक एक करके वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और बुक में जाके मैं दिखा दूंगा ये टॉपिक्स कहाँ है, कैसे पढ़ना है. मैं बोला था अभी के लिए सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक जो हर एक सीबीएसई स्टूडेंट को अवेलेबल होगा, और आईएससी वालों को भी. वो सॉफ्ट कॉपी क्या है? एनसीईआरटी का सीबीएसई का क्लास 11 का बुक, उसका सॉफ्ट कॉपी जो लोग डाउनलोड कर लिए बढ़िया है, जो लोग मांगे नहीं, मिला नहीं, मेरे को मांग लो, मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है. डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन. ओके, नाउ अब सर वो बुक दिखाएंगे. हाँ लास्ट क्लास भी दिखाया था, आज भी दिखाऊंगा, और आज थोड़ा वहां से पढ़ा भी दूंगा, डोंट वरी. ओके सर आज क्या है? आज 17 जून है, वेडनेसडे, अपना सेकंड अकाउंट्स क्लास इन द वीक, एंड टुडे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 2 है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी स्टार्टेड विद. एवरीथिंग शुड बी एज ऑर्गेनाइज्ड एज दिस, आई टेल यू. ओके, नाउ ऑलराइट, सो आज का टॉपिक्स होगा नंबर 1, आई विल टॉक अबाउट सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री के बारे में मैं ना लिखाया ना बोला, समय नहीं था. उसके बाद मैं एक बार डिस्कस करने वाला हूं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग.
अकाउंटिंग कितना तरह का होता है. Number 3, which we are going to discuss, is users of accounting information. Number 4 क्या है सर? Number 4 we will discuss. Number 4 which we are going to discuss is just a moment. History. सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे? हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं मेरी तरफ से बोलूंगा. बुक में है, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ भी रीड नहीं कराऊंगा. रीड करने के लिए तो घर में बुक है, पढ़ लेगा. ठीक है, मैं नरेट कर दूंगा, और नरेट कर दूंगा तो एफिशिएंसी वही क्लास करके जान जाओगे. ओके सर. सर हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा बहुत जानना चाहिए सर. और उसके बाद हम लोग देखेंगे अदर टॉपिक्स. सीरियली अदर टॉपिक्स मैं शुरू कर दूंगा. 8 बजे तक क्लास है और अपने शुरू कर रहे हैं विद सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके सर. सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ब्रांचेस हाँ लिखा हुआ है. सिंगल एंट्री मैं पहले करा दूं, उसके बाद ये दिखाऊंगा. ठीक है. ओके. सिंगल एंट्री कहीं लिखा नहीं है तो पहले सिंगल एंट्री कर लेते हैं. सर ऊपर जगह है? नहीं, नीचे. मैं लिख लिया अदर टॉपिक में. पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस कराऊंगा, फिर अदर्स करूंगा. These 5 topics are the topics which we will cover, and then if time permits we will do other topics also. Okay sir, are we going very good serially? Yes. feel आएगा, आज का क्लास कर लो फिर और feel आएगा. Okay, now just a moment. Okay, one very important aspect, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस होगा. हाँ, होमवर्क डिस्कशन, ये ऐसे ही होगा. होमवर्क डिस्कशन, डोंट वरी. होमवर्क डिस्कशन एंड रिवीजन इज एवरीडेज टास्क. मैं लिखा नहीं बट लिख दिया. ठीक है. होमवर्क डिस्कशन में क्या था? डिसएडवांटेज एडवांटेज था, कवर हो जाएगा. जिसका क्वेरी है अंकित का. ओके नाउ ऑल राइट सर, बताइए. सिंगल एंट्री सिस्टम. यस, गिव द हेडिंग सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके गाइस, सिंगल एंट्री डबल एंट्री का ऑल्टरनेटिव है. पहला बात, सिंगल एंट्री इज एन ऑल्टरनेटिव टू डबल एंट्री. समझते हैं? डबल एंट्री था कंप्लीट रिकॉर्डिंग साइंटिफिकली, and hence double entry system is universally adopted and accepted system of doing accounts. Double entry is what you're going to learn in real life in 11th 12th. तुम लोग जो सीख रहे हो ये सिलेबस में क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ही सिखाया जा रहा है. उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आगे जाके डबल एंट्री सिस्टम ही सिखाया जाएगा. सीए में भी वही सिखाया जाएगा. और कोई अकाउंटेंट का जॉब करेगा तो उसको भी डबल एंट्री सिस्टम ही आना चाहिए. ठीक है. तो ये सारा बात सर आप कहे थे. हाँ, मैं लास्ट क्लास भी डबल एंट्री समझाते वक्त बोला था. सिंगल एंट्री कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट वे ऑफ रिकॉर्डिंग है. मतलब कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होगा. अभी तक जितना नॉलेज हुआ है आपको अकाउंट्स के बारे में, जितना छोटा सा जितना आइडिया किए हो, आपको क्या लगता है अगर सारा ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं होता है, क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो निकलेगा वो सही पिक्चर देगा या गलत पिक्चर देगा? कुछ ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड किए, कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड किए. यू आर रिकॉर्डिंग सिलेक्टिवली, यू आर नॉट रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली. व्हेन यू रिकॉर्ड सिलेक्टिवली some transactions and not all transactions completely, will the financial results which will arise from your accounts, will it give you a true picture or will it give you a false picture? Tell me. Anyone can raise your hand, anyone can chat में लिख सकते हो. will it give a true or false? okay, chat में लिख रहे हैं बहुत जन. okay, false, Gaurav said. yes, false picture, Ankit said. very good. false, Abhishek. very good. okay, so the idea is excellent, Prerak. excellent, Torungo. so the idea is, sir, अजमल ने हाथ उठाया. अजमल लिख दे.
अभी वॉइस ऑन करने में परेशानी हो जाएगा. वेरी गुड. फॉल्स ज्योतिष को. ओके फाइन फाइन, आई गॉट इट. मोस्ट ऑफ योर फॉल्स. कोई ट्रू बोल रहे हो तो बोल सकते हो. ओके नाउ ये नेचुरल है सर, बट ऑब्वियस है कि अपने अगर बात करें अकाउंट्स का, अकाउंट्स सही पिक्चर कब दिखाएगा? जब सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो कंप्लीटली. अगर कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो और कुछ नहीं हो तो सही पिक्चर मिलेगा कहां से सर? और इसीलिए सिंगल एंट्री तो अनसाइंटिफिक है, और इसीलिए तो सिंगल एंट्री में इतना मेहनत है, और इसीलिए तो सिंगल एंट्री पॉपुलर भी नहीं है, और इसीलिए तो सिंगल एंट्री आजमाया भी नहीं जाता है. बट सिंगल एंट्री का अपना मेरिट्स है. क्या मेरिट है सर? अच्छा बोलो ना, पान वाला भैया या फुचका वाला भैया या फिर छोटा मोटा कोई ट्रेडर, वो लोग क्या डबल एंट्री सिस्टम एम्प्लॉय करके अकाउंटिंग करेगा? आप लोग सुने हो ना एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम है टैली, सुने होंगे. टैली, फैक्ट, ये सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है एकदम सस्ते का है, बड़ा बड़ा नहीं है, ईआरपीज नहीं है जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में एम्प्लॉय होता है. बट ये सब में भी जो छोटा एकदम बिजनेसेस है, ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेसेस, डू दे can they employ a big robust accounting system to record transactions? The answer is no. They cannot afford it monetarily. They cannot. क्या एक अकाउंटिंग हायर करेगा? फुचका वाला बोलेगा अकाउंटेंट बैठो, नहीं सर कैसे करेगा? प्रैक्टिकल होइए. तो इसीलिए सिंगल एंट्री वो सब एम्प्लॉय करेंगे जो लोग डबल एंट्री अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. That is the function and advantage and merit and benefit of single entry. Single entry is less costly, less time taking, and less knowledge. That is why it is like a makeshift लेके थोड़ा मैं जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ कभी कभार समझ में नहीं आया तो पूछ लो, या फिर you can refer to the dictionary. It's a makeshift. It's not a permanent solution. It's a makeshift, temporary, quick fix for complementary सब्स्टिट्यूट फॉर डबल एंट्री. ठीक है ना? तो डबल एंट्री के बजाय सिंगल एंट्री तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब अफोर्ड नहीं कर पाते. तो सिंगल एंट्री क्या है सर? ओनली सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग. सर ये लैंग्वेज बुक में मिलेगा? नहीं, मेरा बुक में मिल सकता है. ठीक है, ओरिजिनल लैंग्वेज है सारा, लिख लो. सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. समझने के लिए ये लैंग्वेज रिप्रोड्यूस नहीं करना है एग्जाम में, मैं जो लिखा रहा हूँ समझने के लिए कर रहा हूँ. एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने के लिए लैंग्वेज बुक से मार्क करा दूंगा और बुक से समझ में आ जाएगा. एक बार थॉट को यहाँ से समझ लो. सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, incomplete, less costly and just a moment guys. I'm just fixing the AC. Just one moment. Okay, sorry. So, like I said, selective recording of transactions, incomplete and less costly. These are the merits also. Because people can afford it. And small businesses traditionally who cannot afford a robust accounting system, which is costly, which do not have so much knowledge. People doing business could be from any background, not necessarily they are always from commerce backgrounds. So, they can also do business and they can also record their, transactions in a very unscientific, unmethodical, manner where they will employ single entry. Okay, ठीक है सर, ये समझ में आ गया. अब जल्दी से
जल्दी से एक बार सोचते हैं कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या क्या रिकॉर्ड होता है सिलेक्टिवली और क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होता है, ये शॉर्ट में बोलूंगा, एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट। ठीक है, सिंगल एंट्री में हमेशा याद रखना ओनली कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, creditors and debtors are recorded. सर ये काफी है? हाँ, सिंगल एंट्री में हर चीज रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिटर्स एंड डेटर्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि पर्सनल अकाउंट्स। मैं आगे जाके बात करूंगा, अभी ये सब टेक्निकल शब्द समझ में नहीं आएगा, बट इससे परेशान मत होना। मैं 2 3 4 क्लास करने के बाद, आज दूसरा हो रहा है, और 3 और 4 करने के बाद तुम लोग का कॉन्सेप्ट इतना हो जाएगा। ग्रोथ रेट इज लाइक दिस। ओके, नाउ यू राइट नाउ लिसन टू द वर्ड्स विदाउट एनी बायस इन माइंड के ये तो पता नहीं है, वो तो पता नहीं है, नहीं, वो तो धीरे धीरे पता चलेगा ना। डे 1 में कुछ भी नहीं था, आज थोड़ा बहुत है, नेक्स्ट वीक बहुत बहुत हो जाएगा। ठीक है, सो पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड होता है। पर्सनल अकाउंट्स का एग्जांपल है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, अभी के लिए जस्ट इसको सुन लो। एंड कैश ट्रांजैक्शन सारा रिकॉर्ड होता है, यही चीज सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड होता है, और इतना कॉपी करने से, कॉपी में रखने से ही काफी है। तो दैट कंक्लूड्स माय lecture on single entry for the time being. There's a exclusive chapter dedicated to single entry later on. Okay, and single entry as it is, we are not going to learn. We are going to learn what? We are going to learn double entry system. Okay, all right, sir. What else if what is left if cash debit and credit? No, cash debit and credit nahi bola, cash debtor and creditor bola. सो डेप्रिसिएशन में कैश इन्वॉल्व नहीं है प्रेरक, डेप्रिसिएशन में डेटर और क्रेडिटर भी इन्वॉल्व नहीं है। डेप्रिसिएशन विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सो देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स, आई विल टॉक अबाउट देम। ठीक है, तो डोंट वरी, and I have used the term debtor and creditor and not debit and credit, if you recall and or if you just see. Okay, so where showing, see, debtors and creditors, not debit and credit, they are different terms. Okay, all right, sir, please show single entry once more. Sure, I will please show it, don't worry, take your time, copy it. Okay guys, copied. So what is single entry is copied, fine. Now we will go ahead and do something new. What new sir? एक बार ऊपर टॉपिक्स में चलते हैं, टॉपिक सारा हम लोग लिख चुके हैं। टॉपिक में पहला है सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री हो चुका है, आई हैव मार्क्ड इट येलो। नाउ वी विल डू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है? ओके, ऑल राइट, डोंट आस्क मतलब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अभी क्या है, मैं पहले ही बोल दिया लेक्चर में कि अभी नहीं, वो बाद में जाके मैं बोलूंगा। तो इसीलिए एसेट्स लाइबिलिटीज में मैं बोला तुमको पता है, ये मत सोचना। तुम अगर नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि तुमको पता है। मेरे को पता है तुमको कुछ भी पता नहीं है, ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू विद द थॉट प्रोसेस दैट यू नो नथिंग, and that is the best part and best attitude of a learner and teacher both should understand and should think and should assume that the learner knows nothing, and that way we learn the best. So I know you know nothing. Debtors and creditors भी मैं बाद में बोलने वाला हूँ, assets and liabilities भी बाद में बोलने वाला हूँ. So have patience is another key thing in learning. Okay, now नहीं तो एक दिन में सब कुछ सिखा दूंगा, वो तो संभव नहीं है. ओके, सिंगल एंट्री जितना सीखे, अभी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा.
अकाउंटिंग का 3 ब्रांचेस है। अकाउंटिंग 3 तरह का हो सकता है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड। ओके, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सर? बताइए। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कुछ ऐसा है कि 3 ब्रांचेस होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉपी करते जाना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 2 इज कॉस्ट अकाउंटिंग, and number 3 is मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर हम लोग कौन सा अकाउंटिंग सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर अपने सिलेबस में वही है? हाँ, वही चीज तुम लोग पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफए। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? ये तो आप बताए नहीं। हाँ बता रहा हूं। ओके, तो ध्यान से सुनना। 3 तरह का अकाउंटिंग हो सकता है। नंबर 1 फाइनेंशियल, नंबर 2 कॉस्ट, नंबर 3 branch, sorry, management. Okay, now financial accounting is nothing but recording the transactions under double entry system, जो हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए under double entry system, and how completely to get the net results of doing business, यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए एक बिजनेस का हम लोग कौन सा अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज सोनली यूज्ड फॉर द पर्पस व्हिच आई रोट। ओके, व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग सर? अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में और एक चीज मैं बोल रहा हूं, द डेटा। दिस इज व्हाट is financial accounting. So the data used in financial accounting is historical data या future data? Historical data. Sir, what do you mean by historical data and future data? अच्छा बोलो, एक खर्चा मैं अभी कर लिया, ये हिस्ट्री हो गया या फ्यूचर है? हिस्ट्री हो गया। तो जैसे ही खर्चा हो रहा है, जैसे ही इनकम हो रहा है, जैसे ही कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, that is becoming a part of history and historical data, and hence financial accounting deals with only and only historical data. Are you getting me? And cost accounting क्या है? Cost accounting है, अच्छा सुनो, पहले लिखेंगे नहीं पहले समझेंगे, समझेंगे कैसे सर? अभी समझा रहा हूं, डोंट वरी। पहले लिखेंगे नहीं पहले समझेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग था प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बिजनेस में, ये जानने के लिए सारा ट्रांजैक्शंस को हिस्टोरिकली लिखे। प्रॉफिट या लॉस का मतलब क्या है? नेट रिजल्ट क्या हुआ बिजनेस करके, नेट में रिजल्ट क्या हुआ? नेट का मतलब हो गया इनकम माइनस एक्सपेंस। जैसे ही करेंगे वो प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा। तो प्रॉफिट या लॉस को हमने क्या बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में? नेट रिजल्ट। तो नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस जानने के लिए जो अकाउंटिंग अपने करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिकली डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा, वही चीज को हमने क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, और वही क्या अपने सिलेबस में है और वही क्या अपने सीख रहे। हाँ ओके, ये समझ में आया ना? इज इट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग देन सर? Cost accounting is accounting for cost. Now what is cost? Suppose करो एक रिमोट कंट्रोल है, एसी का, ये बनाने का एक खर्चा है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है। अच्छा, मैं सर्विस दे रहा हूं, तो सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं, ये क्लास का एक खर्चा है, हाँ है ना? खर्चा इज द कॉस्ट।
खर्चा मतलब मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जितना स्पेंड करके एक प्रोडक्ट को बना रहा है वो है खर्चा, दैट इज कॉस्ट। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? आज अगर मैं जो डिलीवर कर रहा हूं सर्विस या जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसका कॉस्ट के बारे में मेरा कोई अंदाजा ना हो, if I don't have any clue on what I am making and how much I am spending on the goods, will I be able to price it correctly in a competitive market? सर बहुत हाई फाई बोल दिया। मैं बोल रहा हूं कि एक competitive market में जहां पे गुड्स बाय एंड सेल होता है, एक कम्पिटिटिव मार्केट का मतलब है कि जहां पे गुड्स सस्ते में बिक रहे हैं या महंगा में, सस्ते में मतलब मैं अगर आज 500 रुपया में एक चीज बेच रहा हूं तो कल कोई 400 में बेचेगा, तो कंपटीशन इतना स्टिफ है। तो एक कम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस अगर करना है तो फिर मेरे को सस्ता से सस्ता गुड्स देना है। सर सस्ता से सस्ता मतलब क्वालिटी नहीं, महंगाई, प्राइसिंग सस्ता रखना है तभी बिकेगा, इको में भी पड़ेगा। ओके, तो सर एक कंपिटिटिव मार्केट में द गुड शुड बी प्राइस लेस, बट गुड्स को प्राइस लेस करने के लिए गुड का कॉस्ट भी लेस होना चाहिए और कॉस्ट भी मेरे को पता होना चाहिए, तब तो प्राइसिंग करेंगे। तो कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके पीछे कॉस्ट कितना जाएगा, वो कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए अलग अकाउंटिंग होता है, जिस अकाउंटिंग को अपने बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक स्ट्रीम ऑफ स्टडी भी होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Cost and management accounting is the stream of study where we study cost accounting. Okay sir, तो cost accounting है क्या? Determination to determine the cost of a product or service. We use cost account, use or employ cost accounting. ओके सर, समझ में आया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यही है, हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग यही है। ओके सर, डेटा क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में? कॉस्ट अकाउंटिंग में ना डेटा हिस्टोरिकल भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि मेरा फ्यूचर में क्या ये प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा होगा, वो फ्यूचर का खर्चा बजट करके मैं प्लान करके बोल रहा हूँ, एस्टिमेट बोल रहा हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डेटा क्या हमेशा हिस्टोरिकल होगा या हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर दोनों हो सकता है? हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर। कॉस्ट अकाउंटिंग में डेटा कुड बी हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या 11th 12th में है? नहीं। ओके, ऑल राइट। The third type of accounting is known as management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया कि आज मैनेजमेंट यानी कि मैं इंग्लिश में बोला, आज मैनेजमेंट यानी कि मैं इंग्लिश में क्या बोला कि मालिक पक्ष, मैनेजमेंट का मतलब हो गया मालिक पक्ष। ये मालिक पक्ष डिसीजन लेता है। बिजनेस करने के लिए डिसीजन कौन लेता है? बाहर वाला एम्प्लॉई, कस्टमर, सप्लायर या मालिक डिसीजन लेता है। बिजनेस जिसका बिजनेस है, प्रोप्राइटर हो, कंपनी का मैनेजमेंट हो, डायरेक्टर हो या फिर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो भी बिजनेस का अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग लेता है वही है मालिक, मैनेजमेंट बोलते हैं अपने। तो ये मैनेजमेंट accounting is nothing but the refers to the decision making process of the management through accounting and taking the help of accounting information. Okay, so it is nothing but decision making by management with the help of cost and फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, सो ये डिसीजन मेकिंग के लिए अपने जो अकाउंटिंग करते हैं उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही हायर सब्जेक्ट्स है, हायर लेवल्स में है, जैसे कि ग्रेजुएशन में है, बैचलर्स लेवल पे, एंड 11th 12th में नहीं है दोनों। यस सर, क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 12 में थोड़ा बहुत है, 11 में तो नहीं।
ठीक है, ओके सर। सर ये 3 कॉपी कर ले, हाँ कॉपी कर सकते हो, ये 3 ऐसे ही कॉपी करना। सर डेटा इसमें भी हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर दोनों लगेगा, हाँ इसमें भी हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर दोनों लगेगा, मैनेजमेंट में भी। सर हिस्टोरिकल का स्पेलिंग इज ऑल ओवर द प्लेस, यस आई एम डूइंग इट, डोंट वरी, ओके। इज इट क्लियर गाइस? कॉपी, कॉपी कर लिए तो बोलना। ओके, सबका हो गया? All right, everyone is done, sorted, very nice people. Now, ओ अंकित का बाकी है, कर ले अंकित, कॉपी कर देना। All right, I believe it's done. Now, 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 I will strike off. Great. Now I will strike off another topic done. Single entry done. Branches of accounting. सर ये single entry branches of accounting ऊपर भी लिखा था, हाँ ऊपर भी लिखा था, मैं नया तरीके से कर दिया, कोई इशू नहीं है। ओके सर, इसके बाद क्या टॉपिक है? इसके बाद आज का टॉपिक थियोरेटिकल वाला है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या है सर? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विथ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैं एक चीज बोलने वाला हूं। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तीन तीन मेजर जो ब्रांचेस मैं बोला, ये ट्रेडिशनल है, मतलब यही है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के, इतना तरह का ब्रांच अकाउंटिंग हो सकता है, अकाउंटिंग कुछ भी हो सकता है, अकाउंटिंग मतलब हिसाब। अच्छा, आज पर्सनल थॉट्स का भी अकाउंटिंग हो सकता है, हाँ मैं कभी कभार लिखता हूँ ना कि पर्सनल मन में क्या चल रहा है, तुम भी लिखते हो, हम सब लिखते हैं, दुनिया भर के आदमी लोग डायरी में, डियर डायरी बोल के, ठीक है, या फिर डियर डायरी के बदले व्हाट्सएप करते हो अपना पसंद का दोस्त को, ठीक है। सो द आइडिया इज, अकाउंटिंग मतलब हिसाब, ये हिसाब कुछ भी हो सकता है, तो टैक्स का अगर हिसाब करे तो टैक्स अकाउंटिंग, ओके। नाम कुछ भी हो सकता है, तो कोई पूछा सर टैक्स अकाउंटिंग क्या है, तो मैं बताया टैक्स अकाउंटिंग बोल के कोई ब्रांच नहीं है, टैक्स का कोई अकाउंटिंग नहीं है, बट हाँ टैक्सेशन का एस्पेक्ट से अगर कुछ हिसाब किया तो उसको हम लोग बोल देते हैं टैक्स अकाउंटिंग, इट्स नॉट अ ब्रांच। टैक्सेशन इज अलग टॉपिक, अलग, टैक्सेशन इज लॉ, ओके। ऑल राइट सर। सर डू यू टीच टैक्स एट बीकॉम? आई डू, एट सी आई डोंट। सीए में अगर एक सब्जेक्ट कोई पढ़ा ले तो वो मास्टर उसी सब्जेक्ट का हो जाता है, तो सर मैं तो, आप दो सब्जेक्ट पढ़ाते हो, लॉ ऑडिट अकाउंट्स, 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लॉ ऑडिट एक ही मानता है इसीलिए। ओके, टैक्स आई कैन टीच एनी सब्जेक्ट, बट ऑफ कोर्स आई टीच टैक्स इन बीकॉम एंड ओनली इन बीकॉम। टैक्सेशन इज नॉट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एक अलग चीज है, लॉ है। क्यों लॉ है? कि कौन सा इनकम पे अपने टैक्स देंगे या नहीं देंगे, कानूनी उसके पीछे फंडा क्या है। ओके सर, समझ में आया। ऑल राइट, तो सर अकाउंटिंग, अदर अदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी हो सकता है, हाँ नाम तुम दे सकते हो कुछ भी, ठीक है, ओके। ऑल राइट सर, गोइंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नंबर 3, सब लोग देखो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज द थर्ड टॉपिक। अच्छा, मैं
ये दिखा दूंगा, मेरा लिखा हुआ है, तुम लोग कॉपी भी करोगे, पहले पूरा सोच को दिमाग में डाल देता हूँ, इंसेप्शन की तरह पूरा ड्रीम में देखोगे, यू विल ड्रीम अबाउट द टॉपिक। ओके, अच्छा मेरे को बताओ, कौन 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 यूज करता है अकाउंट्स? आपको दिमाग में सोच के क्या लगता है, इंटरनली व्हेन यू थिंक अबाउट इट अकाउंट्स, हु विल यूज द अकाउंट्स? नंबर वन दिमाग में सोच आता है ना, मैनेजमेंट खुद ही इस्तेमाल करेगा जो अकाउंटिंग करा रहा है। अभी तो बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट यूजिंग व्हाट, अकाउंट्स। सो फर्स्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पहला यूजर कौन होना चाहिए, किसको होना चाहिए? ऑफ कोर्स सर, मैनेजमेंट। So management is an user of, very big user of accounting information. Management is a very big user of accounting information. Sir, there are other users है, plural है, हाँ। अदर यूजर कौन होगा? एम्प्लॉय भी काम करते वक्त उसको अकाउंट्स का दरकार हो सकता है, हाँ है ना? तो एम्प्लॉइज। अच्छा सर, कस्टमर जो आपसे चीज खरीदेगा, कभी कभार वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहेगा ना, और सप्लायर जो आपको सप्लाई करेगा क्रेडिट में, उधार में आपको बेचेगा, तो उसको तो पैसा मिलेगा आपसे, तो वो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही आपको उधार देगा ना। हम लोग क्या किसी को भी उधार दे देते हैं? नहीं। जो लौटा पाएगा ऐसा व्यक्ति को ही देंगे, जो लौटा नहीं पाएगा उसको देने से पहले सोचेंगे ना। तुम्हारा दोस्त, तुमको पता है ये दोस्त तुमको कभी पैसा वापस नहीं करेगा, तुम वैसा दोस्त को पैसा देगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यू विल हैव डाउट एंड स्केप्टिसिज्म इन योर माइंड। स्केप्टिसिज्म का मतलब सर शक। ओके, नाउ ये जो फंडा मैं बोला, इसको बोला जा रहा है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन है। लेट अस जॉट इट डाउन इन आवर माइंड। आई सेड मैनेजमेंट इज अ मेजर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हु एल्स? मैनेजमेंट छोड़ के देयर इज employees themselves are major users of accounting information. Sir, who else? Employees छोड़ के creditors and debtors, that is customers and suppliers of the business are also interested in your accounting information. Yes sir, who else में आप बोलो, बैंक कौन है? लेंडर। बैंक का मतलब हो गया लेंडर, जो लेंड करता है, लेंडर मतलब जो उधार देता है। तो बैंक यानी कि लेंडर भी आपका क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेगा? हाँ बिल्कुल सर, लेंडर भी करेगा। सर व्हाट अबाउट रिसर्चर? रिसर्चर कौन हो गया सर? रिसर्चर हो गया एक स्टूडेंट जो हर कंपनी का अकाउंट स्टडी करता है, रिसर्चर। यस सर, मार्केट में इन्वेस्ट जो करता है, शेयर मार्केट, शेयर बाजार सुने हो ना, तो कंपनी का तो शेयर्स है, तो कंपनी का तो अकाउंट्स है। तो हर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स में क्या लिखा रहता है? उसका प्रॉफिट लॉस। तो हर कंपनी का अकाउंट्स और कौन इस्तेमाल करेगा? जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उन लोग को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। सर, जो ऑलरेडी बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स, हाँ। तो देर आर लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर, क्या गवर्नमेंट भी कभी कभार जानना चाहता है आपका हिसाब किताब? हाँ, गवर्नमेंट इसलिए जानना चाहता है क्योंकि टैक्स हम लोग किसको देते हैं? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट देखेगा ना मेरा कमाई कितना हुआ, उसमें टैक्स लेगा, तो अकाउंट्स से ही तो कमाई देखेगा, तो गवर्नमेंट भी। ओके, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैं कैसे प्रेजेंट किया, ये कॉपी करोगे। कॉपी करने से पहले मैं और एक एस्पेक्ट समझा दे रहा हूँ। और एक एस्पेक्ट क्या है सर? और एक एस्पेक्ट है, देखो, ये सारा यूजर्स ईदर इंटरनल टू बिजनेस होगा, टू बिजनेस, with respect to business, either these users are internal or these users are external. So internal users जो है उन लोग को मैं इंटरनल लिखा। अच्छा, एम्प्लॉय तो बिजनेस का अंदर का है ना, बिजनेस का ही तो एम्प्लॉयड है, तो बिजनेस एम्प्लॉयज आर व्हाट? इंटरनल। मैनेजमेंट तो खुद ही मालिक है, तो इंटरनल। बैंक या लेंडर्स क्या मेरा बिजनेस का कोई है? नहीं, आउटसाइडर है, तो एक्सटर्नल। सप्लायर क्रेडिटर एक्सटर्नल। कस्टमर डेटर वही सप्लायर क्रेडिटर का ही और एक नाम, एक्सटर्नल। गवर्नमेंट एक्सटर्नल। इन्वेस्टर इंटरनल। इन्वेस्टर मतलब जो पैसा दे दिया बिजनेस को, इन्वेस्ट कर दिया। और रिसर्चर एक्सटर्नल। क्लियर है? सो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक बार कॉपी करो, जल्दी करो।
कर लिए तो बोलना। कर लिए? ओके ओके सर, सर हो गया। अब जल्दी से बताइए। ऑल राइट। ओ सर वेट, यस शीश, प्लीज कॉपी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज बोलना चाहता हूँ। स्कूल स्कूल में आप लोग का जो स्कूल्स है, रिस्पेक्टिव स्कूल्स, इस बार मैं जो लास्ट क्लास बोला था उसी तरफ आगे जा रहा है। मैं लास्ट क्लास में बोला था कि कोरोना या कोविड जो सिचुएशन है, पैंडेमिक है, this situation is going to stay. This situation is unavoidable and going to stay for a while till the time vaccines are commercially available, which will take at least a year, because manufacturing of vaccines at a large scale and a new vaccine which जिसका research अभी भी full हुआ नहीं, किसको पता नहीं. So the idea is it will stay till year end. तो आप लोग का session is going to be online. So make it clear, जो भी दोस्त है, जो भी है, अभी से डिसीजन तुम लोग ले लो कि ऑनलाइन क्लासेस ही करना है, क्योंकि बाहर निकलने से रिस्क, यू आर रिस्किंग योरसेल्फ, यू आर रिस्किंग योर फैमिली, बिकॉज इट्स कंटेजियस, एंड ऑल्सो द कॉस्ट, द टाइम कॉस्ट, टाइम ज्यादा लगता है, और अभी ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम है बाहर, एंड द मनी कॉस्ट ऑल्सो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो एवरीथिंग टेकन टुगेदर, आप लोगों को स्मार्टली, और ये तो बहुत अच्छा है कि टाइम बच जाएगा, तो बोर्ड्स में टाइम बच गया तो इससे बेहतर क्या है। एंड गोइंग फॉरवर्ड पूरा मार्केट ही ऑनलाइन हो जाएगा, तो पूरा सीए तक आप लोग ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर पाओगे। मेरा सारा बीकॉम क्लासेस अभी, मतलब मेरा सारा क्लासेस लगभग ऑनलाइन ही हो रहा है जब से लॉकडाउन इम्पोज हुआ है। तो ऑनलाइन में भी वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आर वीडियो क्वालिटी इन द मिडल ऑफ द सेशन ओनली। यू विल सी के बेटर कैमरा, बेटर सॉफ्टवेयर, बेटर एवरीथिंग वी विल डू फॉर यू गाइज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अस। खाली इंटरनेट कनेक्शन हम लोग भी और स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट आप लोगों को अपना एंड में इंटरनेट कनेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ लोग इंटरनेट में ऑन ऑफ होते रहते हो, बिकॉज इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप कोई भी क्लास नहीं कर पाओगे, सिर्फ मेरा नहीं, क्योंकि हर क्लासेस, स्कूल का क्लासेस भी कुछ हद तक ऑनलाइन ही हो जाएगा, आई एम श्योर। सो दैट इज माई वर्ड ऑफ एडवाइस ड्यूरिंग द कॉपी टाइम। एनीवे, सो देयर इज अ क्वेरी, सर इन्वेस्टर इंटरनल कैसा है? अच्छा बोलो, मैं अगर मेरा पैसा बिजनेस में लगा दिया तो मेरा नाम क्या होगा इंग्लिश में? इन्वेस्टर, अ पर्सन हु इज इन्वेस्टेड मनी। तो इफ आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड इफ आई एम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एम आई इंटरनल और एक्सटर्नल? इंटरनल। बात समझे? ओके, ऑल राइट सर, सर समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है, देखो, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, ओके। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या है सर, थोड़ा बताइए। हिस्ट्री तो नफरत था हम लोग को क्लास 10 तक, तभी तो जाके कॉमर्स लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। All the subjects are equally important, and you know, history is one of the best subjects I feel. Although I scored very low in history, don't ask. Okay, in school I was very poor in history, but right now when I'm maturing and growing old, I'm thinking history is such a beautiful subject. Anyway, why? Let us talk about it. Not history, but history of accounting, जो अपना topic है. Accounting is not new. If you've heard of this book called Artha Shastra, which is a very primitive book, अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा अरिथमेटिक का यूज हुआ था, और अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट्स लिखा था। मैंने पढ़ा नहीं, सुना हिस्ट्री। तो अर्थशास्त्र talks about what? Artha means what? Artha means
It means. Okay. And nothing but money. So the idea is अकाउंटिंग कब हुआ है इसका कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है. अकाउंटिंग कब इन्वेंट हुआ है या डिस्कवर हुआ है या एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ है, इसका कोई हिस्टोरिक डेटाबेस या कोई एविडेंस नहीं है. बट इट इज सेड इट डेट्स बैक टू द dawn of civilization. जब से ट्रेडिंग शुरू हुआ है तब से ही हिसाब शुरू हुआ होगा. नेचुरल, इट इज बट ऑब्वियस कि ट्रेडिंग जब से शुरू हुआ है, व्यापार जब से शुरू हुआ है, ठीक है, तब से ही बिजनेस के साथ साथ बिजनेस का अकाउंटिंग भी शुरू हुआ होगा. इनफैक्ट द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बुक ऑन accounting or double entry principle is found in the as early as the 15th century. 15th century में there's a Italian intellectual जिनका नाम था Luca Pacioli. He in his book of Principal Mathematica or Arithmetica, तो Latin book, तो this person in his book has referred to double entry principle as early as 15th century. डबल एंट्री प्रिंसिपल लेके जो ज्ञान है इनका किताब में सबसे पहले फर्स्ट recorded evidence of double entry principle, and it is as early as 15th century. Or in fact I will talk about the root words debit credit जो आजकल इंग्लिश हो गया है, but debit credit is derived from the word debitum, which is a Latin word meaning the receiving aspect, and credit is also derived from creditum, which means the giving aspect. And this debit and credit, debitum and creditum, was first mentioned in his book. Okay, so first recorded history of double entry is there in 15th century, as early as 15th century in this person's book. So this is a noteworthy fact on accounts. Being students of accounts, you must know these bits and pieces of history from time to time. Is it recorded in the book also? NCERT, हाँ, other books में भी मिलेगा. ठीक है. History and evolution of accounting को मैं बहुत nutshell में तुम लोग को present किया. If you want to read more, you can see the topic from the book. Okay, all right. Now history of accounting तो से समझ में आ गया. अभी जो बाकी टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर्स में जाएंगे. अदर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के पहले इट्स टाइम टू डिस्कस द होमवर्क. एंड होमवर्क डिस्कस करते करते मैं नया होमवर्क भी दूंगा और इसके साथ साथ बुक भी खोल लूंगा, तो बुक से देख भी लेंगे टॉपिक क्या क्या मिस हो रहा है या क्या फ्लो में है. ओके, एक बार बुक को खोल रहा हूँ. जिन लोग के पास एनसीईआरटी का बुक है, प्लीज यू कैन ओपन द बुक. जिन लोग के पास नहीं है वो लोग बुक यहाँ से देख लो, कोई इशू नहीं है. Just a moment. So introduction to accounting is chapter 1, which we are doing, basic concepts. See, the first introduction के नीचे मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ बुक को भी. पहला चैप्टर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम लोग किए. Just a moment. It's moving a little slow. हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, देखो यही मैं बोला अभी. और देखो यहाँ पे जिक्र है, जिक्र का मतलब मेंशन. यहाँ पे इट इज मेंशन. ओके, यहाँ पे कोई पूछ रहा है, श्रीश पूछ रहा है, लूका पैचियोली इज अ वुमन? नो, लूका I said. So could be, I'm not sure actually.
यहाँ पे तो वुमन या मैन लिखा नहीं है. ओके, सो ये देखो, ठीक है, ये मैं उनका नाम जहाँ पे जिक्र हुआ है तुम लोग का किताब में एक बार दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, सी द स्पेलिंग इज करेक्ट. I have also mentioned अर्थशास्त्र, they have also mentioned centuries ago इंडिया में भी. ओके, एंड उनका बुक का नाम है, it's a Latin text, Summa de Arithmetica. Okay, and you know, it's basically review of arithmetic and geometry. and arithmetic से ही accounts आया है, हिसाब ही है. और you know 1494, that talks about what, 15th century. Okay, एकदम later part of the 15th century. Okay, and this is what the history is. I have just shown you and I have already taught you. Okay, now economic events which are transactions, उसके बारे में ये लोग कहा है जो हम लोग पढ़ लिए हैं. Identification, measurement, recording and communication, this is what functions of accounts. And you know, interested users of information, आज ही की हम लोग. Users of accounting information is a thing which we have done today only. Okay, then why do users want accounting information? This also we have done. Okay, accounting as a source of information you can study on your own or you can leave. And there's a interesting you know, text box, test your understanding, which we can do in class में थोड़ा बहुत क्लास वर्क हो तो मजा आता है. करो सब लोग, ए से आई जो है लिख के रखो. मैं अभी डिस्कस करूंगा इन 5 minutes. आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम टू सॉल्व दिस, नॉट मोर. 9 fill in the blanks are there. Please solve it in class. जो भी आता है करो, नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा, हर एक चीज को समझाऊंगा. बस सॉल्व कीजिए. Very good. Someone has completed. Others, please back up. ओके ओके, अच्छा बोलो. मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, मेरे ख्याल से बहुत लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो वेट करके फायदा नहीं. इंफॉर्मेशन इज इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किस पे बेस करके होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हम लोग जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या चीज पे बेस करके होता है? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं. इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर बेस करके, या नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर बेस करके, ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस करके. हाँ, श्रीश ने बोला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक इवेंट्स. करेक्ट. सो नंबर 1 विल बी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स. इकोनॉमिक इवेंट्स भी बोल सकते हो ट्रांजैक्शंस को. ठीक है, ट्रांजैक्शंस को. ओके,
अच्छा, इंटरनल यूजर्स आर द डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटी। मैनेजमेंट या एम्प्लॉय, मैनेजमेंट या एम्प्लॉय दोनों ही इंटरनल यूजर है ना, मैनेजमेंट भी इंटरनल यूजर है और एम्प्लॉयज भी है, अभी तो बोला, ठीक है। ओके ओके सर, मैनेजमेंट को ओनर्स बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। ओके, मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज। ओके सर, ओके सर, ओके। A dash, number C, a dash would most likely use an entity's financial report to determine whether or not the business entity is eligible for a loan। कौन बोलो, क्रेडिटर, या क्रेडिटर भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, लेंडर, लेंडर लोन देता है ना, लेंडर, या फिर बैंक, जो भी लैंग्वेज है करेक्ट है। डोंट वरी अबाउट द आंसर, आंसर के साथ सैक्रोसैंक्ट मिलना है ऐसा नहीं है। क्रेडिटर भी इंटरेस्टेड है, बैंक भी इंटरेस्टेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंटरेस्टेड है, जो भी उधार देगा वही इंटरेस्टेड होगा। करेक्ट सर। हैंडराइटिंग कितना घटिया है, हैंडराइटिंग घटिया होने का कारण है ये पेन कीपैड से जो भी करेगा उसका हैंडराइटिंग घटिया दिखेगा। मेरा हैंडराइटिंग ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, बट ठीक है। ओके, द इंटरनेट हैज assisted in decreasing the dash in issuing financial reports। सर डैश मतलब बोलो, डैश में क्या होगा बोलो। नंबर 4, वेरी गुड, कोई बोला है टाइम। यस, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, टाइम गैप, टाइम टेकन जो भी बोल सकते हो, टाइम टेकन, ठीक है। टी टी, टाइम टेकन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, तुम लोग फुल लिखना। ओके सर, नेक्स्ट वाला बताइए। डैश यूजर्स आर ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी। डैश यूजर्स आर ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस अबाउट द एक्सटर्नल यूजर्स। सर एक्सटर्नल यूजर्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, एक्सटर्नल यूजर्स बोल ही दिया तो, आउटसाइड द एंटिटी। हाँ बिल्कुल सही हो। अच्छा सर, इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलेवेंट इफ इट इज टाइमली। सर टाइमली होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कंप्लीट। वेरी गुड, टाइमली एंड कंप्लीट बोल सकते हैं, टाइमली एंड कंप्लीट, टी एंड सी दोनों कह सकते हैं। बुक का आंसर नहीं देखना है अपने को, खुद का आंसर ओपिनियन देना है। वेरी गुड, अनबायस्ड, ओके, एंड अनबायस्ड, ओके, अनबायस्ड हो, इंफॉर्मेशन अनबायस्ड हो, ओके। सो ये सारा। सर जी क्या है, जी में बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश एंड एंड्स विद डैश। नहीं, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद रिकॉर्डिंग एंड एंड्स विद रिपोर्टिंग। आर एंड आर मैं तो समझा दिया था, रिकॉर्डिंग से शुरू होता है और रिपोर्टिंग तक चलता है। अंकित वेरी गुड। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट। ये तो इजी है सर, मॉनिटरी 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 मॉनिटरी, ओके। एंड लास्ट वाला क्या होगा सर, इकोनॉमिक, सॉरी, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स, यानी कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इन ऑर्डर ऑफ टाइम। वेरी गुड। सो देखो, एक एक्सरसाइज भी सॉल्व किया, अभी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है ना थ्योरी लेके, मतलब थ्योरी ऑफ अकाउंट्स लेके, और ये तो बेस बिल्डिंग है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। लेट अस गो अहेड, लेट अस गो अहेड सर। और क्या आप दिखा रहे थे, होमवर्क डिस्कस करने के लिए आए थे हम लोग। हाँ, डोंट वरी, आई विल शो एवरीथिंग एंड वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। जस्ट अ मोमेंट। ओके, ऑल राइट सर, बताइए कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे है। हाँ देखो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी छुपा हुआ था सर, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर नीचे है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहाँ है नीचे, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, ठीक है। तो सारा ब्रांचेस यहाँ पे लिख दिया सर। हाँ, फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज योर होमवर्क। लिख लो होमवर्क, ये नेक्स्ट दिन पढ़ के आना है, यही से होमवर्क है,
कुछ भी छोड़ना नहीं है। पहला 3 चैप्टर बहुत अच्छे से अगर कोई करता है तो उसका जीवन भर का अकाउंटिंग ना बहुत मजबूत होगा। It's like just like working out, it's just like sports, it's just like any other discipline. If we basics अगर concept clear हो गया तो जीवन भर का रास्ता आसान हो जाएगा। और बेसिक जिसका वीक रहेगा, कोर उसका वीक है, वो कभी बन नहीं पाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ सुनते रहिए बस। ऑल राइट, नाउ सर ये क्वालिटेटिव तो होमवर्क है, मैं नेक्स्ट दिन डिस्कस करूंगा होमवर्क। जैसे ब्रांचेस तो आप करा दिए सर, हाँ। उसके बाद क्या है सर, ऑब्जेक्टिव्स आप लास्ट दिन बोल दिए थे, यहाँ पे भी है। अच्छा सर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। सर एडवांटेजेस कहीं दिया है, दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, ये ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा सर, ये रोल ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग छोड़ने से भी हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग नेक्स्ट क्लास वी विल डू, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोला था ना हम लोग आगे जाके डेटर क्रेडिटर एसेट लाइबिलिटी सारा चीज सीखेंगे। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस। मैं एक बार दिखा रहा हूँ बुक में क्या है, विल गो बैक टू आवर स्टडी, डोंट वरी। डेटर क्रेडिटर, ओके सर, यही चैप्टर 1 है, हाँ दिस इज चैप्टर 1। तो सर आप तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए थे, वो चैप्टर 2 में मिलेगा। सर आप थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। हाँ मैं बिल्कुल डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बाद तो आप लोग का होमवर्क नेक्स्ट दिन का क्या है, नेक्स्ट दिन का होमवर्क मैं बताता हूँ। नेक्स्ट दिन का होमवर्क है, फर्स्टली रोल ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा पढ़ लेना, एंड जो उसके ऊपर मैं दिया, उसके ऊपर मैं क्या दिया था, एक होमवर्क याद है? What was the homework which I gave? I gave another homework that was yes, very good, कोई लिख लिया, qualitative characteristics of accounting, reliability, relevance, etc. Very good. Okay sir, so qualitative characteristics of uh, this accounting। सर होमवर्क डिस्कशन आपका बाकी है, हाँ होमवर्क डिस्कशन यानी कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं बोल के छोड़ूंगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बोल के थोड़ा सा बोल के छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं। और अदर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा मैं वो भी बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में of course as a theme I always do revision, quick revision के बाद होमवर्क डिस्कशन पहले कर लूंगा, जो कि क्वालिटेटिव होमवर्क डिस्कशन, एंड टॉपिक में अदर में मैं सम बेसिक टर्म्स पहले करूंगा, उसके बाद चैप्टर 2, ठीक है। दिस इज द आइडिया फॉर नेक्स्ट क्लास, ओके। नेक्स्ट क्लास का आइडिया भी दे देता हूँ, ओके सर अभी ये कराएंगे, हाँ अदर्स तो होगा नहीं, तो स्ट्रेट अवे वी विल गो टू classification of transactions which is the last topic। but before classification of transactions मैं advantages and disadvantages बोल दे रहा हूँ। अच्छा सर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में क्या बोले, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, वो चैप्टर 2 या 3 में मिल जाएगा, टेक्स्ट तुम लोग को मिला नहीं इसलिए। एडवांटेजेस अकाउंटिंग का क्या है, तुम आसान तरीके से बिजनेस का पिक्चर देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, इट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस, है ना एडवांटेज। सर डिसीजन मेकिंग ले पाओगे, हाँ डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। सर और क्या एडवांटेज हो सकता है, टाइमली डिसीजन ले पाएंगे, हाँ है ना। सर टाइमली क्या कोई भी डिसीजन ले पाएंगे, हाँ अभी कैश कितना है अगर पता है, हिसाब है, तो फिर मैं बोल पाऊंगा कि कैश कितना है मेरे पास खर्चा करने लायक,
हाँ है ना। तो हिसाब से ये सारा एडवांटेजेस है। अच्छा सर, डिसएडवांटेज क्या है? एक छोटा दुकान जैसे बोला, जहां पे सोल प्रोप्राइटर का मतलब मालिक अकेला बिजनेस चला रहा है। तो मालिक जहां पे अकेला खुद बिजनेस चला रहा है, क्या उसके पास इतना कुछ करने का समय रहता है? और छोटा बिजनेस है तो अकाउंटेंट हायर नहीं कर पाएगा, तो समय का पाबंदी इज अ डिसएडवांटेज। दूसरा रेस्ट्रिक्शन या दूसरा डिसएडवांटेज इज नॉलेज। क्या मालिक को कॉमर्स का ही ग्रेजुएट होना पड़ेगा कि वो उसको अकाउंटिंग आएगा? नहीं, मालिक कुड बी फ्रॉम एनी स्ट्रीम, मालिक कुड बी अनएडुकेटेड आल्सो। ओके, सो बिजनेस में तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए एजुकेशनल। तो सर, तो आप बोलना चाहते हो कि और एक डिसएडवांटेज है द नॉलेज। यस, टाइम, कॉस्ट, knowledge, these are the advantages also, disadvantages also depends. Okay, so this was advantages and disadvantages. Now I'll quickly start with a topic which we will continue further, but एक बार मैं बोलना चाहता हूं छोटा करके आज, although 8 बजने को है, we will give 5 more minutes and then we will, then we will wrap up today's session, which is classification of transactions. Classification of transactions. Okay, all right. जल्दी से सुनना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस में मैं ऊपर में छोटा करके लिखा था, तो इट विल सेव आवर टाइम एंड यू कैन कॉपी इट, बट फर्स्ट लेट मी शो यू व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये खाली कॉपी करना है आप लोग को, ठीक है? ये खाली कॉपी करना है। देखो, ट्रांजैक्शंस दो तरह का हो सकता है। पहला क्या तरह का हो सकता है? कैश या नॉन कैश। और दूसरा क्या हो सकता है? इंटरनल या एक्सटर्नल। ये समझा के आज खत्म करेंगे, ठीक है? ट्रांजैक्शन यानी कि इकोनॉमिक इवेंट्स which impacts the financial position of a business. They are transactions which has to be expressed in monetary terms, and these transactions could be of manifold types. Could be manifold. Number one, they could be cash or non-cash. Number two, they could be internal and external. Now let me explain to you these types of transactions. With that, we will call it a wrap. Now listen to me. कैश जब भी इन्वॉल्व रहेगा, मैं दुकान गया, कैश देके खरीदा, is it a cash transaction or a non-cash transaction? Cash transaction, sir. When I am receiving cash by selling some goods or services, providing some services, that is also cash transactions. Whenever cash is involved in a transaction, such a transaction is cash transaction. When no cash is involved, such a transaction is non-cash transaction. ठीक है? So write down, ये लिखने के बाद लिखिए, when cash is involved, when cash transaction, पहले लिखिए, cash transaction पहले लिखिए, when cash is involved in a transaction, it is a cash transaction. नॉन कैश ट्रांजैक्शन में लिखिए, अच्छा कैश ट्रांजैक्शन के साथ एग्जांपल भी लिख दीजिए, लिखिए एग्जांपल, when cash is involved in a transaction, it is a cash transaction. Example, cash purchase, cash sale. Example, cash purchase, cash sale. Okay, okay, all right. Now come to non-cash transactions and write down, when no cash is involved, when no cash is involved in a transaction, such a transaction is a non-cash transaction. Non-cash transaction. Sir, example में लिखो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। इतना आसान सर? हाँ, उधार में जब खरीदते हैं तब क्या पैसा देना पड़ता है? नहीं। उधार में जब बेचते हैं क्या पैसा मिलेगा? नहीं, ठीक है? सो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। ओके सर। सर ये कैश नॉन कैश तो समझ में आ गया, अभी बताइए इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या है? हाँ, अब ध्यान देना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है, थोड़ा सा समझना। इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया
जो मेरा कंपनी का अंदर का एक हिसाब है जिसमें कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं रहेगा। कंपनी का अंदर का एक ट्रांजैक्शन जिसमें कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं रहेगा, where no third party is involved, such a transaction is known as internal transaction. सर एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल एकदम आसान है, एग्जांपल एकदम आसान है। मालिक बिजनेस में हिसाब करके प्रॉफिट अपना नाम किया। एक मालिक बिजनेस कर रहे तो प्रॉफिट क्या बाहर वाले का होगा या मालिक का? मालिक का। तो प्रॉफिट जो है वो अपना अकाउंट में ट्रांसफर किया, बोला कि प्रॉफिट मेरा है, ये प्रॉफिट तो मेरे ही साथ जाएगा घर। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है, कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं है इसमें। सो इंटरनल ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन व्हेन नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। देखो, इंटरनल ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, वेयर देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। इंटरनल ट्रांजैक्शंस बहुत रेयर होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि बिजनेस तो हमेशा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के साथ ही होगा, है ना? ओके, तो लिखो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस में लिखिए, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आर ट्रांजैक्शंस वेयर थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व्ड, वेयर थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व्ड। जो भी परचेज, सेल, एसेट परचेज, एसेट सोल्ड, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ दैट सॉर्ट इज एक्सटर्नल, जहां पे भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत आसान है, जहां पे कैश इन्वॉल्व है वो कैश ट्रांजैक्शन है, जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो एक्सटर्नल है, जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है वो इंटरनल है। इतना आसान है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? ओके, सो दैट कॉल्स अ रैप, दैट कॉल्स अ रैप। इफ देयर इज एनी डाउट, मैं डाउट सॉल्विंग का सेशन भी देता हूँ क्लास के बाद। So if there's any doubt, please, this is the time to ask. I will always give you doubt clearing opportunity during the class. Also, you have chatted and I have always responded to all doubts. And after class, I exclusively give, time for doubts. Internal का example अभी मैं लिखाना नहीं चाहता था, but लिखाऊंगा तो आप लोग को समझाना पड़ेगा और एक टॉपिक, बट अभी मैं लिखाऊंगा ड्यू टू द फैक्ट दैट यू हैव आस्क्ड इट, लिखा दूंगा बट समझाऊंगा नहीं। लिखो डेप्रिसिएशन, इंटरनल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। आज एक बार बोला था, मैं जिक्र किया था, तो लिख लो इंटरनल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। ओके सर, कैन यू प्लीज रिपीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन? बिल्कुल, यस, आई कैन रिपीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. Internal transactions are transactions where there is no involvement of third party, and external transactions are transactions where there is involvement of third party. मतलब business के साथ third party का कोई involvement नहीं है, ऐसा transaction को अपने बोलेंगे internal, अंतर्गत, internal. and जो बाहर वाले के साथ transaction हो रहा है वो क्या है? external. ओके सर, स्कूल का एक असाइनमेंट क्या हेल्प कर पाएंगे? हाँ, क्या है वो पूछ सकते हो, बट स्कूल का असाइनमेंट क्लास में ऐसे नहीं होगा। यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट, और यू कैन कॉल मी, आई कैन हेल्प यू आउट। ओके सर, कैन यू रिपीट व्हाट वर यू सेइंग अबाउट स्टेक होल्डर्स? आई गॉट डिस्कनेक्टेड। स्टेक होल्डर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, तो नॉन इशू। सर, कैन यू टेल डिफरेंस बिटवीन कैश एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स? डिफरेंस बिटवीन कैश एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, ये तो बोला ही नहीं। इट्स कैश अकाउंट्स बोल के तो कोई अकाउंट्स नहीं होता है। प्रेरक का सवाल है, प्रेरक आप पूछ रहे हो डिफरेंस बिटवीन कैश एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, ऐसा तो कोई टॉपिक में पढ़ा है नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कैश अकाउंटिंग, ओके, वन एट अ टाइम। मैं आ रहा हूं, सारा क्वेरी सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। पहला सवाल है प्रेरक का। प्रेरक, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कैश अकाउंट्स बोल के मैं कोई अकाउंट्स नहीं लिखा, मैं बोला ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है प्रेरक। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैश तो कभी बोला ही नहीं, ऐसा तो कोई सिखाया ही नहीं। तो प्रेरक क्या क्लियर है आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया कॉस्ट निकालना,
और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया डिसीजन मेकिंग। तो आपका सवाल ही मेरे को समझ में नहीं आया, बट मैं जो समझा मैं समझा दिया। सर व्हाट इज थर्ड पार्टी इन अ बिजनेस? अच्छा, एक बिजनेस में थर्ड पार्टी कौन है? आउटसाइडर। श्रीश, आउटसाइडर इज अ थर्ड पार्टी टू अ बिजनेस। सपोज कीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, जो भी पार्टीज है जो बिजनेस में नहीं है, बिजनेस का बाहर वाला इज अ थर्ड पार्टी। आपका फैमिली है, सपोज कीजिए फैमिली के बाहर में जो भी है वो कौन है? थर्ड पार्टी। समझ में आया श्रेष? समझ में आया तो संग संग बोलना मेरे को। ओके, ऑल राइट, प्रेरक क्लियर एंड श्रीश क्लियर। ओके, अभिजीत, आई टोल्ड यू स्टेक होल्डर्स वाला पोर्शन नॉट नेसेसरी। Now there's a question by Ankit Basak. Ankit Basak is asking that chartered accounting is a branch of accounting. Chartered accounting बोल के कोई शब्द नहीं है बेटा। CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटिंग नहीं हूं, ठीक है? इट्स इंग्लिश, इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? Chartered accountants are CAs. It's not chartered accounting. Okay, these are commonplace mistakes. Okay, all right. Okay, internal and external transaction का example can you give? I said internal transaction का example is depreciation. It was a query by someone. I gave the internal transaction का example to be depreciation. I told you I cannot explain depreciation now, but for the example you can write depreciation. Depreciation का spelling क्या है sir? Depreciation is an example of internal transaction. Okay. इंटरनल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है डिप्रिसिएशन। और एक्सटर्नल का एग्जांपल क्या है? जो भी मैं कैश और नॉन कैश में लिखा है वो सारा एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन 90% एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ही होता है। तो सारा बाहर से मैं कुछ गुड्स खरीदा तो थर्ड पार्टी, तो परचेज, सेल, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कुछ भी सारा एक्सटर्नल है। डिप्रिसिएशन एंड फ्यू अदर आर इंटरनल ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल। क्लियर है? एनी अदर डाउट? जिन लोग का डाउट सॉल्व हो रहा है प्लीज हाँ या ना बोलते रहो, थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहो। ओके, ज्योतिष का मैं लास्ट दिन बोल दिया था, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड सम अदर टर्मिनोलॉजीज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अभी मत पूछिए, नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिकली जो डिस्कस होगा वो अभी मत पूछिए। ओके, ग्रेट गाइस, वी आर कॉलिंग इट अ रैप। थैंक्स फॉर, much thanks for attending today's class. We are meeting on Monday. Okay, please do get in touch. Bye bye.